Welcome students, how are you? Welcome to the part third of matrices and determinants. In part two, we already discussed about eigenvalues, eigenvalues for 2 cross 2 matrix, for 2 cross 2 matrix. Okay, if you have watched the whole video, then at last we have done one question, that is, if we have a matrix 4, 2, 1, 3. So we obtained characteristic polynomial corresponding to this lambda square minus trace of a lambda plus determinant of a. Okay, so we get lambda square minus the trace of the matrix, the sum of the diagonal elements is 7, lambda plus determinant of a. So the value of determinant is 4 is a 12, determinant of a is 4 is a 12 minus 2, that is 10. So up to here we have 7 lambda plus 10 equals to 0, and we get lambda equals to 5 and lambda equals to 2 are the eigenvalues for this matrix A. Eigenvalues for matrix A. Now we talk about eigenvectors. How to find the eigenvectors in 2 cross 2 matrix, especially in this matrix, because we already discussed about the eigenvalues for this matrix. So for eigenvectors we have equation. Suppose x equals to x1 x2 is the eigenvector corresponding to lambda equals to 5. Okay, so first we take lambda equals to 5 for each eigenvalue for our matrix A. There exists an eigenvector which we talked about here. So पहले हम consider कर रहे हैं lambda equals to 5. Equation बनेगी for eigenvector ax equals to lambda x. Okay, remember this, ax equals to lambda x, where x is this, x is x1 x2 वेक्टर. यहाँ पे इस तरह से वेक्टर बनेगा क्योंकि 2 + 2 का हमारा मैट्रिक्स है. तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ax minus lambda x equals to 0, which further reduce to a minus lambda i x equals to 0. तो हमें क्या करना है, a में से lambda i को माइनस करना है और lambda की वैल्यू 5 पुट करनी है, क्योंकि हम lambda equals to 5 के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं. तो a क्या है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड a minus 5i बेसिकली, और वेक्टर जो है हमारे पास वो x है इक्वल्स टू 0. तो व्हाट इज a is 4 2 1 3 minus 5 times I means 5 0 0 5. ओके, और बाहर जो है हमारे पास वेक्टर वो x1 x2 है, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हियर वी सॉल्व दिस 4 minus 5, so this is -1, and 2 minus 0 is 0, sorry, 2 minus 0 is 2, 2 minus 0 is 2, 1 minus 0 is 1, and 3 minus 5 is -2, and multiplied by x1 x2 equals to 0. Understand? So we get, here we get equation minus x1 plus 2 times x2 equals to 0. This is equation number 1. And from the second row we get x1 minus 2 times x2, simply multiply मैं कर रहा हूँ, this multiply this plus this multiply this, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया, इक्वल्स टू 0. अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम ही है. अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 0 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सेम ही इक्वेशंस हैं. तो एक रिलेशन हमें मिल गया है
what relation we get? Relation that is x1 equals to 2 times x2. दिस रिलेशन, दोनों इक्वेशन से यही रिलेशन मिलेगा हमें। तो ये रिलेशन क्या साउंड कर रहा है? ये कह रहा है कि x1 की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स x2 होगी। तो अगर मैं x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ऑब्वियसली x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये वेक्टर हमें मिल जाएगा। आप कुछ और वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमें अवर चॉइस, अपनी चॉइस से रखनी है और करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू उस चॉइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। सो दिस वेक्टर 2 1 ये वेक्टर हमें रिक्वायर्ड हुआ है करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल्स टू 5। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू 2 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे इन द नेक्स्ट पेज। हमें हमें नाउ वी फाइंड eigenvector for your corresponding lambda equals to 2. So we have a equation is a minus lambda I और यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू 0। सो दिस इज a माइनस लैम्डा की वैल्यू 2i एंड दिस इज x इज x1 x2 इक्वल्स टू 0। a हमारे पास है 4 2 1 3 ऑब्वियसली, माइनस 2 टाइम्स i मीन्स 2 0 0 2 आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर जो वेक्टर है हमारे पास वो है x1 x2। So this is 4 minus 2. 4 minus 2 is 2. 2 minus 0 is 2. 4 minus 2 is 0. 1 minus 0 is 1. And 3 minus 2 is 1. Multiplied by x1 x2 equals to 0. तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में 2x1 यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2x1 प्लस 2x2 equals to 0 and this is x1 plus x2 equals to 0। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से 2 कॉमन लेते हैं तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 ही बचता है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये 0 में जाएगा तो x1 प्लस x2। तो रिलेशन जो है दोनों इक्वेशन से सेम ही आएगा, ये सेम आ रहा है हमारे पास, दैट इज 0। तो व्हाट बी रिलेशन? द रिलेशन फ्रॉम रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 इज relation is x1 plus x2 equals to 0। this implies x1 is minus times x2। ठीक है, तो अगर x2 की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। दिस इज आइगन वेक्टर। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर आइगन वेक्टर निकालने के लिए। दिस इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 आइगन वेक्टर्स मिल गए हैं, दोनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 5 वी गेट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 5 इज 2 और 1, पीछे हमने देखा है अभी। एंड फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 वी गेट आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to 2 is lambda equals to 2 is this -1 and 1। okay, so answer is 2 1 -1 and 1। आइगन वेक्टर्स के लिए हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फिनिश होता है। नेक्स्ट वी हैव